جنوبی پنجاب خطرناک فضائی آلودگی کی لپیٹ میں ہے۔ ملتان پاکستان کا آلودہ ترین شہر بن گیا۔ شہر عالیہ میں ایئر کوالٹی انڈیکس 1684 پوائنٹ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ رحیم یار خان میں 760 پوائنٹ کے ساتھ جنوبی پنجاب کا دوسرا آلودہ ترین شہر ہے۔ مظفر گڑھ 294 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر، خانیوال کے 287 اور سرگودا کے 242 پوائنٹ ریکارڈ کیے گئے ہیں، جبکہ اگر بہاول نگر کی بات کی جائے تو بہاول نگر 240 اور راجن پور کے 238 پوائنٹ ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ اپڈیٹ کریں آپ کو اسموگ کے حوالے سے۔ ڈیرہ قاضی خان 279، بہاول پور 256 پوائنٹس ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ آلودہ فضا میں شہریوں کے لیے سانس لینا محال امراض پھیلنے لگے ہیں۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، جنوبی پنجاب خطرناک فضائی آلودگی کی لپیٹ میں آ گیا ہے۔ ملتان پاکستان کا آلودہ ترین شہر بن گیا ہے۔ شہر عالیہ میں ایئر کوالٹی انڈیکس 1684 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ رحیم یار خان 760 پوائنٹس کے ساتھ جنوبی پنجاب کا دوسرا آلودہ ترین شہر ہے۔ ملتان میں اسموگ کے حوالے سے بات کریں تو ملتان میں اسموگ کا راج جو ہے وہ برقرار ہے۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں اسموگ کا راج جو ہے وہ برقرار ہے، لیکن اگر ملتان کے حوالے سے بات کریں تو ملتان میں جو ہے وہ پاکستان کا پہلا فضائی آلودہ شہر جو ہے وہ ایئر کوالٹی انڈیکس کے حوالے سے دیکھا گیا ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے حوالے سے بات کریں تو ملتان جو ہے وہ 1684 پوائنٹ کے ساتھ جو ہے وہ پہلے نمبر پر موجود ہے، جبکہ دوسرے شہروں کے حوالے سے بات کریں تو رحیم یار خان 760 پوائنٹ کے ساتھ جو ہے وہ دوسرے نمبر پر موجود ہے، جبکہ مظفر گڑھ جو ہے وہ 294 پوائنٹ کے ساتھ جو ہے وہ تیسرے نمبر پر موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خانیوال 287، سرگودا 242، بہاول نگر 240 اور راجن پور کے 238 پوائنٹس جو ہیں وہ دیکھے گئے ہیں، جبکہ ڈیرہ غازی خان کے 269، بہاول پور 256 پوائنٹس جو ہیں وہ اس کے ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ملتان جو ہے وہ آج فضائی آلودہ شہر کے حوالے سے پہلا شہر جو ہے وہ دیکھا گیا جو آج ملتان میں اسموگ کی شدت میں بھی جو ہے وہ مسلسل اضافہ دیکھنے کو آیا ہے، کیونکہ ملتان میں جو ہے وہ پورے شہر کو اسموگ نے جو ہے وہ لپٹ میں لیا ہوا ہے۔ بات کریں اگر بھٹوں اور فیکٹریوں کے حوالے سے تو ملتان میں بھٹا جات جو ہیں وہ بھی معمول کے مطابق چل رہے ہیں۔ ضلع انتظامیہ اور محکمہ ماحولیات کی ٹیمیں جو ہیں وہ بھٹا کو بند کروانے کے حوالے سے بھی مکمل طور پر ناکام دکھائی دے رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو محکمہ ماحولیات کی ٹیمیں ہیں وہ بھی جو ہے وہ کارروائی نہ کرنے سے جو ہے وہ بھٹا جات معمول کے مطابق چل رہے ہیں، جس سے ان کے دھواں جو ہے وہ اس کا سبب بن رہا ہے اسموگ کا، جس سے شہریوں کو کافی پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو طبی ماہرین کا بھی یہی کہنا ہے کہ شہری جو ہے وہ اسموگ سے بچنے کے لیے جو ہے وہ ماسک کا خاص طور پر استعمال کریں، یہ جو اسموگ سے پیدا ہونے والی بیماری ہے اس سے بچا جا سکے۔ جی احمد خان، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اسموگ آمد و رفت کی راہ میں رکاوٹ، موٹر وے M4 تاحال تمام تر ٹریفک کے لیے بند ہے۔ موٹر وے M3 کو تمام تر ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ ملتان شدید اسموگ کے باعث موٹر وے کو بند کیا گیا ہے۔ بتا رہے ہیں آپ کو، اسموگ آمد و رفت کی راہ میں رکاوٹ، موٹر وے M4 تاحال تمام تر ٹریفک کے لیے بند، موٹر وے M3 کو تمام تر ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ شدید اسموگ کے باعث موٹر وے کو بند کیا گیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ اسموگ تدارک سے متعلق احکامات جاری کیے ہیں۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم، پنجاب بھر میں دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں فوری بند کی جائیں۔ کاروباری مراکز رات 8 بجے بند کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ بتا رہے ہیں آپ کو، لاہور ہائی کورٹ اسموگ تدارک سے متعلق احکامات، دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دیا گیا ہے۔ پنجاب بھر میں دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں فوری بند کی جائیں گی۔ کاروباری مراکز رات 8 بجے بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بتا رہے ہیں آپ کو، اہم خبر کے حوالے سے، لاہور ہائی کورٹ اسموگ تدارک سے متعلق احکامات، دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم، پنجاب بھر میں دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں فوری بند کی جائیں۔ کاروباری مراکز رات 8 بجے بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ کو عدالت کے احکامات کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا اسموگ تدارک سے متعلق احکامات، کہنا ہے کہ ہائی کورٹ کا دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دیا گیا ہے۔ ٹریفک پولیس کو دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف فوری بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ڈولفن پولیس کو بھی دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا گیا ہے۔ سیکرٹری ٹرانسپورٹ کا لاری اڈوں پر دھواں چھوڑنے والی بسوں کو سیل کرنے کا حکم، لاہور ہائی کورٹ کا مارکیٹیں رات 8 بجے بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عدالت کا اتوار کے روز مارکیٹیں مکمل بند کرنے کا حکم۔
अब बात करेंगे बहावलपुर की। बहावलपुर शदीद स्मोक की लपेट में शहर और गिरदोनवा की फिजा इंतहाई आलूदा हो गई। फिजा सांस लेने के लिए आलमी मयार से 30 दर्जे मुज़र सेहत करार। हद निगाह ताहाल मुतासिर है। मज़ाफात में हद निगाह 1000 मीटर रह गई है। धुंधनुमा स्मोक में शहरियों के लिए सांस लेना चैलेंज बन गया। स्मोक के असरात से बचाने के लिए आगाही न होने के बराबर है। शहरियों की बड़ी तादाद ताहाल मास्क के इस्तेमाल से गुरेजा है। इसी हवाले से मजीद हमें ताहिर जोया अपडेट करेंगे। जी ताहिर, बताइएगा बहावलपुर में शदीद स्मोक है, लोगों को किन मुश्किलात और बीमारियों का सामना है, इस हवाले से हमें अपडेट करिएगा। जी, बहावलपुर में स्मोक की जो शिद्दत है वो इतनी बढ़ चुकी है कि अब सबसे बड़ा चैलेंज शहरियों के लिए ये है कि वो इस आलूदगी में सांस कैसे लें। यकीन जाने कि ये जो सूरत हाल बहावलपुर में इस सुबह डेवलप हुई है, ये इंतहाई एमरजेंसी और इंतहाई अर्जेंट है। और यहाँ पर अगर सिर्फ आप बहावलपुर शहर के नहीं, बहावलपुर के मज़ाफात की बात करते चले तो जो गर्द है, धुआं है, टॉक्सिक धुआं है, वो इससे कबल सिर्फ महसूस किया जा सकता था, देखा भी जा सकता था, लेकिन अब इसको टेस्ट भी किया जा सकता है। एक अजीब सी कैफियत है बहावलपुर में और घुटन सा माहौल है। बहावलपुर के जो शहरी हैं वो इस वक्त शदीद उलझन का शिकार है, शदीद मुश्किल का शिकार है कि सांस जो है वो किस तरह से लिया जाए। हम देख रहे हैं कि कुछ 10% लोग जो है उन्होंने मास्क इस्तेमाल कर लिया है। कुछ लोग ऐसे भी शामिल हैं जिन्होंने रुमाल से अपना चेहरा जो है वो लपेटा हुआ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस घुटन के माहौल में मास्क भी नहीं लगा पा रहे हैं और रुमाल से चेहरा भी लपेट नहीं पा रहे हैं, क्योंकि घुटन इतनी ज्यादा है, ऑक्सीजन का लेवल इतना डाउन हो चुका है और जो टॉक्सिक मटेरियल है वो हवा में इतना ज्यादा हो चुका है कि मास्क लगाने के बाद भी सांस जो है वो ठीक से नहीं आ रहा है और घुटन का एहसास महसूस हो रहा है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि जो हद निगाह है वो इंतहाई मुतासिर है। बहावलपुर शहर के अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूं और शहर के अंदर हद निगाह की ये सूरत हाल है कि 500 और 1000 मीटर के दौरान हद निगाह जा रही है और शहर के मज़ाफात में इससे भी हद निगाह कम है। तो बहावलपुर के शहरी इस वक्त इस आलूदा फिजा को इनहेल करते नजर आ रहे हैं और साथ साथ इस फिजाई आलूदगी की वजह से बीमारियां जो है वो फूट पड़ी हैं, क्योंकि सीजनल बीमारियां जिस रूटीन के साथ बहावलपुर के शहरियों का रुख करी थी वो अब उसकी जो इम्पैक्ट है वो डबल हो गया है। नज़ला जुकाम की बात करें, दीगर जो बीमारियां हैं जिसमें स्ट्रोक की बात करें, और इसी तरह से बेशतर जो लोग पहले से ही बीमार हैं उनकी अलामात काफी हद तक बढ़ चुकी हैं और इस वक्त बहावलपुर की फिजा आलमी मयार से 30 दर्जे ज्यादा हो चुकी है और बज़ाहिर ये महसूस किया जा सकता है कि कितनी मुश्किल से वो लोग जो हैं जिनको दमा है, जिनको सांस की बीमारियां हैं, उनके लिए कितना मुश्किल हो गया इस फजा में जीना। और हमने जब शहरियों से यहाँ पर बात की बहावलपुर के, तो उनका यही मुतालबा है कि बहावलपुर डिवीजन को भी डिक्लेयर किया जाए कि यहाँ पे शहरी जो है वो मास्क लाजमी इस्तेमाल करें और साथ साथ दीगर जो एमरजेंसी सर्विलेंस है भट्टों की और इंडस्ट्री की वो भी बढ़ाई जाए। और हम देख सकते हैं कि बहावलपुर शहर के अंदर गाड़ियां दाखिल भी हो रही हैं, खारिज भी हो रही हैं और धुआं छोड़ती गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं। तो एक तो इम्पैक्ट ये स्मोक का है, क्लाइमेट चेंज का है या इंडिया से आ रही है, लेकिन जो लोकल सतह पर हमने काम करना है वो अभी तक बहावलपुर में हमें कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा। शहरियों का सिर्फ यही मुतालबा है कि साफ फिजा उनका एक बुनियादी हक है और साफ फिजा उनको दी जाए और इस हवाले से इंतजामिया ने कोई अभी तक आगाही ना तो मुहिम शुरू की है, ना शहरियों को इस हवाले से आगाही फराहम की गई है कि स्मोक से बचाव किस तरह से उन्होंने करना है। और जो लोग घरों में महसूर हैं, क्योंकि कहा तो यही जा रहा है टीवी मालिकी की तरफ गैर जरूरी सफर जो है वो ना किया जाए, घरों में रहा जाए, लेकिन ये जितनी स्मोक बहावलपुर में इस वक्त फैल चुकी है ये इंडोर भी इतनी ही ज्यादा इंटेंसिटी के साथ मौजूद है। तो खिड़कियां दरवाजे बंद करने से खिड़कियां दरवाजे बंद कर लें। ताहिर जोया, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आप हमें स्मोक के हवाले से अपडेट कर रहे थे। बहावलपुर शदीद स्मोक की लपेट में है। शहर और गिरदोनवा की फिजा इंतहाई आलूदा हो गई है। फिजा सांस लेने के लिए आलमी मयार से 30 दर्जे मुज़र सेहत करार। अब बात करेंगे कादिरपुर राह की। कादिरपुर राह में स्मोक का राज, शहरी बीमार होने लगे। शहरी बुखार, आंखों में जलन और चेस्ट इन्फेक्शन में मुब्तला। कहते हैं धुआं छोड़ती गाड़ियां और फैक्ट्रियां स्मोक का सबब हैं। फसलों की बाकियात को आग लगाना स्मोक की बड़ी वजह। मजीद जानेंगे असगर शाहीन से। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ कादरपुर राह में। दीगर शहरों की तरह कादरपुर राह जो इस वक्त जो स्मोक की सूरत हाल है वो मुकम्मल तौर पर शहर जो है इसकी स्मोक की लपेट में आ चुका है, जिससे शहरियों में मुख्तलिफ बीमारियाँ जो फैल चुकी हैं, नज़ला, जुकाम, बुखार, चेस्ट इन्फेक्शन, ये आम हो चुका है, जिससे शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे इस बारे में बात करते हैं। भाईजान, स्मोक की बढ़ती हुई सूरत हाल में कादरपुर राह में इस वक्त आलूदगी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, जिसकी वजह से शहरियों में बहुत परेशानी है, आंखों की, सांस की और इसकी बीमारियां काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी हैं। और इनकी बड़ी वजूहात में से जो है स्मोक की जो फसलों की बाकियात हैं उनको आग लगाई जा रही है, कोई कंट्रोल नहीं है यहाँ पे। ये भट्टों के जहरीले धुएँ हैं,
फैक्ट्रियों के धुएं हैं, गाड़ियों के धुएं हैं, ये सारे धुएं इसकी वजह वजूहात बन रहे हैं। और इस मामले में हमारी अपील है कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर साहब से कि फौरी कोई कार्रवाई की जाए ताकि इस पर कोई काबू पाया जा सके और ताकि शहरियों को इस तकलीफ से बचाया जा सके। कादरपुर जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका कहना था कि जो स्मोक की सूरत हाल है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है। शहरियों में चेस्ट इन्फेक्शन, नज़ला बुखार, ज़ुकाम की बीमारियां आम हो रही हैं और शहरी बहुत ज़्यादा इससे परेशान है। और महकमा माहौलिया जो है वो बिल्कुल कोई नोटिस नहीं ले रहा। और सबसे ज़्यादा जो स्मोक की वजह बन रही है वो ये जहरीला जो धुआं निकल रहा है, ये सबसे ज़्यादा स्मोक की वजह बन रही है। जी, असर शाहीन, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कादरपुरा में स्मोक का राज, शहरी बीमार होने लगे। शहरी बुखार, आंखों में जलन और चेस्ट इन्फेक्शन में मुब्तला। धुआं छोड़ती गाड़ियां और फैक्ट्रियां स्मोक का सबब बन रही हैं। फसलों की बाक़ियात को आग लगाना स्मोक की बड़ी वजह करार। महकमे माहौलियात खामोश तमाशाई बना हुआ है। कादरपुरा में शहरियों का कमिश्नर मुल्तान से नोटिस लेने का मुतालबा है। खेलों की दुनिया से आपको बताएं, पाक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सीरीज एडलेड में मैदान सज गया। दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया 163 रन पर थे। हारिस रऊफ की धुआंधार बाउलिंग, 5 बल्लेबाज आउट किए। शाहीन शाह अफरीदी के हिस्से में 3 विकेटें आईं। शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुम्मीद हैं। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल है। अपडेट कर रहे हैं आपको पाक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सीरीज के हवाले से। एडलेड में मैदान सज गया। दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया 163 रन पर ढेर। हारिस रऊफ की धुआंधार बाउलिंग, 5 बल्लेबाज आउट। शाहीन शाह अफरीदी के हिस्से में 3 विकेटें आईं। शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुम्मीद हैं। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल है। थल जीप रैली का आज क्वालिफाइंग राउंड। थल जीप रैली और मेला आज दूसरा दिन है। लिया में चुबारा के मुकाम पर रंगारंग तकरीबात, रवायती कल्चर प्रोग्राम के साथ आज म्यूजिकल नाइट भी मुनाकिद होगी। मजीद बात करते हैं रजा मलिक से जो मिड पॉइंट चुबारा पर मौजूद हैं। जी रजा मलिक, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं थल जीप रैली के हवाले से? देखिए, बहुत रंगारंग मेला है, बहुत बड़ी फेस्टिविटी है। यहाँ जो मिड पॉइंट बनाया गया है नवी थल जीप रैली का, जिला लिया की तहसील चुबारा में, ये हकीकत में जंगल में मंगल जो है वो बना दिया गया है। भरपूर तरीके से इंतजाम किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। सिक्योरिटी के आला इंतजाम हैं, लेकिन मौसम पर किसी का भी कंट्रोल नहीं। इस वक्त सूरत हाल ये कि पूरा खिता जो है वो शदीद धुंध की लपेट में है और हद निगाह जो है वो मुतासर हो रही है, जिसकी वजह से जो मेले की सरगर्मियां हैं वो भी थोड़ा इल्तवा का शिकार होती नजर आ रही हैं। फेस्टिविटी है, भरपूर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की तरफ से भरपूर किस्म के यहाँ स्टार्स लगाए गए हैं और बाकायदा जो मेले का इफ्तिताह है वो यहाँ आज 3 बजे जो है वो बाकायदा तौर पर मेले का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। और मुख्तलिफ मुकाबले होने हैं, टेंट पैकिंग होगी, इसके साथ साथ मुख्तलिफ स्टार जो है वो सजाए गए हैं। वॉलीबॉल, कबड्डी के मुकाबले होंगे, जबकि शाम के औकात में जो है यहाँ एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस होगी। शहरियों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है यहाँ पर, हमारे साथ मौजूद है। हाँ जी, कैसे देख रहे हैं फेस्टिविटी को, क्या सूरत हाल है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल मजीद, असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो हमारी तहसील चौबारा है, बेसिकली तो ये सहरा है, रेगिस्तान है, लेकिन अब हालात इस तरह के लगते हैं जैसे जंगल में मंगल का समा हो। हर तरह, हर शोबा है ज़िंदगी के जो लोग हैं वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे मुख्तलिफ इदारों के कैंप लगे हुए हैं, पॉलिटिशियन के, हर लिहाज से बहुत खूबसूरत एक समा। जी बिल्कुल खूबसूरत समा है, देखने के लिए आए हैं जी। किस तरीके से देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत एंजॉय कर रहे हैं और मैं कहता हूं कि हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बिग एफर्ट है, जिसको हम एंजॉय भी कर रहे हैं और इसके लिए हम इसको सेलिब्रेट। जी बिल्कुल सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आप कैमरा मैन अगर आए तो हम जो टेंट पैकिंग के लिए जो टीम आई हुई है उनसे भी हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो है भरपूर घुड़दौड़ के जो है मुकाबले होने यहाँ पर जो है वो नजर आने हैं। किस तरीके से जी तैयारियां हैं, घुड़दौड़ कैसे देख रहे हैं सारा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करके हैं और इंशाल्लाह मज़ा आ रहा है और आप लोगों को देखने में भी मज़ा आएगा। शुरू से सुनते आ रहे हैं जंगल में मंगल होता है, तो इन्होंने साबित कर दिया कि वाकई जंगल में मंगल बनाया हुआ है। हमारे इधर जीप रैली का और घोड़ों का बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं, हमें बड़ी खुशी हो रही है देख के। जी बिल्कुल, जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो इंतजामात किए गए हैं। सरकारी अफसरान भी यहाँ जो है वो इंतजामात में पेश हैं। सीईओ एजुकेशन जो है हमारे साथ में, किस तरीके के जी बड़े एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से बड़े खूबसूरत स्टार्स लगाए गए हैं, लोगों की बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन है, लोकल हॉलीडे भी की गई है, तो किस तरीके से बड़ी बच्चियां जो है बड़े फैंसी ड्रेसेस में भी नजर आ रही हैं? You know, it's a big show for Liya.
That's why education department, you know, the biggest department. So we are playing our role. जहाँ पे जितने भी अपना इवेंट्स हैं, चाहे वो फ्लैग होस्टिंग है, कौमी तराना है, तिलावत है, नात है, मिली नगमे हैं, स्काउट्स हमारे यहाँ पर जो है ना वो भी मौजूद हैं, और हमने यहाँ पर जो है अपना कल्चरल शो जो है वो भी हमने जो है यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है, और एक कल्चरल जो हमारी हट है रिवायती जो है इस इलाके के हवाले से वो भी इस्टेब्लिश की गई है। तो मकसद कहने का ये है कि हर हवाले से जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट जो अपना रोल जो जी एजुकेशन डिपार्टमेंट हर तरीके से जो है अपना रोल निभा रहा है। कैमरा में दिखा सकें तो एक तरफ जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो स्टेज तैयार किया गया है, यहाँ पर जो है वो फूल रख दिए गए हैं, मेहमानों की आमद का इंतजार है, सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर अलैया अमीरा बेदार और जो DPO हैं मोहम्मद अली वसीम, उनकी तरफ से खसूसी इंतजाम जो हैं वो सिक्योरिटी के गए हैं। जो इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो टेंट पेगिंग की टीमें हैं वो लाइन अप हो रही हैं, बाकायदा तौर पर जो उनके लिए पंडाल है वो सजा दिया गया है, तैयार कर दिया गया है। भरपूर तरीके से जो टीमें हैं, जो मुल्क भर से ये टीमें आई हुई हैं, शहसवार हैं, घुड़सवार हैं, जो अभी टेंट पेगिंग में हिस्सा लेंगे, जबकि उनके अकब में जो है वो एक स्टेज तैयार किया जा रहा है म्यूजिकल परफॉर्मेंस के लिए, जो शाम को होने जा रही है, और उसके लिए खसूसी इंतजाम किए गए हैं लाइट्स के हवाले से भी। और यहाँ हर तरफ जो है वो सब्ज हिलाली परचमों की जो है वो बहार आई हुई है। पाकिस्तान के परचम जो है पूरे पंडाल में हर तरफ जो है वो लहला रहे हैं। मुख्तलिफ जो है इंफरादी तौर पर भी जो है वो कैंप्स कायम किए गए हैं, जबकि ड्राइवर्स की तरफ से भी जो है यहाँ चूंकि ये मिड पॉइंट है, उनकी गाड़ियों की रिकवरी की सूरत हाल, उनकी मेंटेनेंस के हवाले से भी जो है वो यहाँ इंतजाम जो है वो नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जब वो पहुंचेंगे तो 10 मिनट स्टॉप के बाद वो यहाँ से वापसी के सफर पर जो है वो रवाना हो जाएंगे। वापसी के सफर पर रवाना हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया रजा मलिक, आप हमें थल जीप रैली के हवाले से अपडेट कर रहे थे। थल जीप रैली का आज क्वालिफाइंग राउंड है। थल जीप रैली और मेले का आज दूसरा दिन है। लिया में शुबारा के मकाम पर रंगारंग तकरीबात, रवायती कल्चर प्रोग्राम के साथ आज म्यूजिकल नाइट भी मुनाकिद होगी। कोट अद्दू में थल जीप रैली का दूसरा रोज मारूफ खातून रेसर दीना पटेल और रोनी पटेल की एंट्री। रोनी पटेल कहते हैं कि जब थल की रैली शुरू की थी तो चंद गाड़ियां थीं, अब 80 से ज्यादा गाड़ियां रेस में देखकर खुशी हुई। चोलिस्तान की निस्बत ये 200 किलोमीटर कम है। मजीद क्या कहते हैं शफकत मलाना से जानेंगे। जी शफकत मलाना। बिल्कुल, आज नौवीं थल जीप रैली का दूसरा रोज है। क्वालिफाइंग राउंड में यहाँ पे काफी ज्यादा रेसर ले रहे हैं। यहाँ पे रोनी पटेल साहब है, उनकी बेटी है दीना पटेल साहब, वो भी आज इस रेस में हिस्सा ले रहे हैं। रोनी पटेल साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आप काफी ज्यादा रेसिंग में यहाँ पे हिस्सा ले चुके हैं, एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है। दीना मैडम भी आज साथ है, इस हवाले से आज ट्रैक और आज क्वालिफाइंग राउंड के सिलसिले में आपका क्या कहना है? जी, मुझे बड़ी खुशी है। 90 गाड़ियां हैं और थल हमारा बड़ा फेवरेट ट्रैक है। हमने कोई 9-10 साल पहले मस्ती में शुरू किया था थल 10-15 गाड़ियों के साथ। आज माशाल्लाह 90 गाड़ियां हैं और इसको हम मिनी चोलिस्तान कहते हैं। चोलिस्तान ये सीजन शुरू होता है थल से, इंशाल्लाह चोलिस्तान अभी जो हमारी बड़ी रैली है वो भी आएगी, मगर ये भी बात में 200 किलोमीटर की रैली हो गई है अभी, और इसको हम मजीद अगले साल बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, ये रोनी पटेल साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना था इनको बहुत ज्यादा खुशी हुई जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो चंद गाड़ियां थी, आज 80 से ऊपर यहाँ पे गाड़ियां हैं। ये 200 किलोमीटर का ट्रैक है। मजीद ये चोलिस्तान की तरह इसको भी बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हैं। मैं आगे मुस्तकबिल में इस ट्रैक को वो मजीद यहाँ पे बढ़ाया जाएगा। जी शफकत मलाना, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। रहीम यार खान के नेशनल गैरिजन सेकेंडरी स्कूल में साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन वाइस चांसलर ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर आजम खान ने इफ्तिताह किया। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स वलीद अहमद, साबिक चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मियां एजाज आमिर भी मौजूद, चेयरमैन नेशनल गैरिजन स्कूल यासीन रामी और प्रिंसिपल ताहिर रामी भी मौजूद। एग्जीबिशन में बच्चों ने मॉडल्स के जरिए अपने अमली काम को पेश किया। इसी बारे में मजीद जानेंगे आसिम सिद्दीक से। जी आसिम। रहीम यार खान के नेशनल गैरिजन सेकेंडरी स्कूल में साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आमिर आजम खान ने किया। डॉक्टर साहब, आप साइंस एंड आर्ट्स एग्जीबिशन देख रहे हैं, जो बच्चों का काम है, छोटे बच्चों का,
10th क्लास तक के 4 से लेकर 10 तक कैसा काम देखते हैं, कैसा प्रेजेंट किया, उनका आर्ट का कल्चर कैसा था, साइंस को कैसे प्रेजेंट किया, इन बच्चों की महारत के बारे में आप क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बच्चे जो हैं यही हमारे मुस्तकबिल की साइंसदान हैं, यही हमारे मुस्तकबिल के इंजीनियर हैं, और मैं ये काम देख के तो बहुत खुश हुआ हूँ। जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने मुझे एक्सप्लेन किया कि 5वीं क्लास, 6ठी क्लास, 7वीं क्लास के बच्चे उन्होंने अपनी जो उनके जहन में आइडियाज़ थे उसको डिस्प्ले किया, और बहुत महारत से तमाम के तमाम जितने भी स्टॉल्स हैं बहुत ही अच्छे स्टॉल्स बने हुए हैं। इंशाल्लाह यही वो बच्चे हैं जो हमारे मुस्तकबिल में बड़े बड़े साइंसदान बनेंगे और बड़े बड़े इंजीनियर्स बनेंगे इंशाल्लाह। सर, इसके जो फनपारे पेश किए गए हैं बच्चों के मुख्तलिफ मॉडल्स हम देख रहे हैं, तो इन फनपारों को आगे आप क्या समझते हैं ये बच्चे मुस्तकबिल में कैसा किरदार अदा कर सकते हैं? देखें, ये अभी तो उनके जो जहन में जो भी ख्यालात हैं उन्होंने उसको शो किया है, और उसके लिए उन्होंने बहुत दिन रात मेहनत करके ये मॉडल्स बनाए हैं। लेकिन ये कि इससे आगे अगली स्टेप्स में अपनी ज़िंदगी में वो जब डिटेल्स को स्टडी करेंगे साइंस की, और उनको पता चलेगा कि ये कैसे इसको कन्वर्ट किया जाता है, जिसको कहते हैं ना कि ब्रिंगिंग टेक्नोलॉजी टू द डोर स्टेप ऑफ कॉमन मैन, वो लेकर आने के लिए जाहिर सी बात है कि फिर उनको फर्दर हायर एजुकेशन की ज़रूरत है। और हमारे जैसे इदारे यूनिवर्सिटी इसके लिए हर वक्त इस काविश में हैं लगे हुए कि इन टैलेंटेड यंग जो हमारे कह लें होनहार स्टूडेंट्स हैं उनको हम ट्रेन कर सकें, सो दैट दे बिकम यूज़फुल फॉर द कॉमन जो इंसान है उसकी ज़िंदगी में उसका फ़ायदा हो सके। यासीन साहब जो चेयरमैन हैं नेशनल गाइडेंस स्कूल के, यासीन साहब बच्चों को तालीम तो दी जाती है किताबी, मगर अमली काम के लिए कैसे तैयार किया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिम भाई, जिस तरह आप देख रहे हैं कि बच्चों ने ये मॉडल बनाए हैं, यकीनी बात है बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि साथ साथ जो वो एजुकेशन ले रहे हैं स्पेशली साइंस की, तो उसको मॉडल फॉर्म में, इनके प्रैक्टिकल फॉर्म में उसको लेकर आएँ। तो बच्चे ने यही कोशिश की, जो उनके आइडियाज़ थे, उनके ड्रीम्स थे, उनके माइंड में जो चीज़ आई है उन्होंने उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म किया है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो साइंस के अंदर हैं तो उसको उन्होंने वर्किंग मॉडल्स की फॉर्म में बनाई हैं उन लोगों ने, बच्चों ने वर्किंग फॉर्म के अंदर, मॉडल्स के अंदर अपनी तालीम को, किताबी तालीम को कन्वर्ट करके मॉडल्स में पेश किया है। आर्ट एग्जीबिशन को इनकाद का मकसद भी यही है कि बच्चों की महारत को पेश किया जा सके। जी आसिम सिद्दीक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, आर्ट कौंसिल ज़ेरे एहतमाम 3 रोज़ा कुरानी खताती की नुमाइश सैयद तौसीफ तौसीफी के फनपारों पर मुश्तमिल 3 रोज़ा नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश का इफ्तिताह एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन अब्दुल जब्बार ने किया। तफसीलात से आगाह कर रही हैं अलिशबा आसिफ। जी अलिशबा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मुल्तान आर्ट्स कौंसिल की गैलरी में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो है सैयद तौसीफ अहमद तौसीफ जो कि भूलेवाला के आर्टिस्ट हैं, उनके फनपारों की जो है नुमाइश की गई है। अगर मेरे कैमरामैन आपको यहाँ पे दिखा सके तो यहाँ पे एक बड़ी तादाद में जो है शहरी भी आए हुए हैं ये नुमाइश देखने के लिए, और बड़ी खूबसूरत कलरिंग यूज़ की गई है। मेरे साथ यहाँ पे कुछ आर्टिस्ट भी मौजूद हैं, आर्टिस्ट से बात करते हैं क्या कहना चाहेंगे ऐसे फनपारों की नुमाइश के बारे में, और आज की नुमाइश जो है उनको कैसी लग रही है। आप बताएं, आप आई हैं देखने के लिए, आपको कैसी लगी है ये नुमाइश, और इसकी क्या एक खसूसियत है जो आपके दिल को छू गई है? सबसे पहले तो इनके कलर्स का इस्तेमाल, ये ब्राइट कलर में इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, और कंपोजिशन भी बहुत अच्छी है। कैलीग्राफी में एक संजीदा कलर होते हैं, वो रवायती कलर नहीं है, रवायती कलर से हट के काम किया है। तौसीफ साहब का काम में वैरायटी भी बहुत है, और ये बहुत अच्छा चेंज है, और आर्ट काउंसिल में ऐसी एग्जीबिशन होनी चाहिए। जी बिल्कुल, इस एग्जीबिशन से जो है मुल्तान आर्ट्स काउंसिल की जो गैलरी है उधर रौनक भी बहाल हो गई है। और 3 रोज़ा ये नुमाइश है, कुरान पाक की खताती जो है उस पर मुबनी ये फनपारों की नुमाइश की गई है। बेहतरीन कलर्स यूज़ किए गए हैं जो देखने वालों को बहुत पसंद आ रहे हैं। यहाँ पर देखने वालों की, शहरियों की, आर्टिस्ट की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो इन फनपारों को सराह भी रही है, और शहरियों का कहना है कि ऐसी नुमाइश होनी चाहिए ताकि वो आए और आर्टिस्ट के काम को सराह सकें। जी।